Okay. So बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय डियर फ्रेंड्स, हमने लास्ट जो है इस चैप्टर को पढ़ा था. ओके, द रैंसम ऑफ द रेड चीफ. यस बेटा. सर आप जो ये रिकॉर्ड करते हैं ना, ये आप होटल भी भेज दिया करें. ओके ओके, लिसन माय डियर फ्रेंड्स, आपको जो बात करनी है आप मुझे चैट बॉक्स में कीजिए. ठीक है, मैं वहां से इसे जो है पढ़कर आपके जवाब दे दूंगा. ओके. So the ransom of the red chief. This was the name of your chapter when I started that. And the story I have told you that there was a boy who was 10-year old and he was the son of a great businessman. He was kidnapped by two people, and those two persons, they were looking after this boy. Why were they looking after this boy? Because they wanted a ransom amount from the father Dorset, and that was $2,000. Now the boy who was 10 years old, he was making so much fun, and he was teasing as well to to that particular one man. The name of that was Bill. Okay, and Bill was afraid of that particular boy who was kidnapped. What happened? First, he kicked him when he was being kidnapped, when the boy was being kidnapped. After that, he took a knife and sat on the chest of Jim. That was another incident. Thirdly, he was saying that he is going to be killed. Fourthly, he took a stone, the boy took a stone in his hand, and he was making that particular boy, that particular person, Jim, that he would blow his head. And things were going like that, and Jim was so much afraid. He told his friend, the second friend, Sam, that please don't leave me because he is afraid of this boy. What happened next? Sam, he realized that the boy did not want to go home, so he threatened the boy that if he continues to do these type of thing, if he continues to do these type of things, then he will send him back to the home. And if he doesn't want to go home, the boy, then he should be good with Jim. So Jim and that particular small 10 years old boy, they shook their hands, and after that, Sam told Bill that let me go out and see the situation, what is happening outside. Sam went outside and he saw nothing was happening over there. The normal life was going on. Nobody was searching for the boy. Then he said to the Jim that let me go outside to the village 3 miles away from this place and I would sue the situation whether the people are worrying about this boy or not. And after that, we will be finalizing the things. So Bill was saying to Sam that listen, my dear Sam, whenever there was a storm, whenever there was cyclone, whenever there was flood, I did not leave you. Even when I kidnapped this child, I showed a great courage. And now when it is my turn, you are leaving me alone. Please don't leave me alone. Well, Dorset, Mr. Dorset, the father of that son, these two people wanted the amount of ransom from Dorset, and the amount was $2,000. What happened? That both of the people, Bill and Sam, they decided to write
a message, a letter to Dorset for about $2,000 ransom amount. Bill, he was continuously insisting Sam to please reduce the amount, and finally the amount reduced to $1,500. Now they started writing the letter to Mr. Dorset. Ebenezer Dorset, we have your boy. It's useless to search him here and there. And if you want to, if you want your boys back, if you want your boy back, then you need to give an amount of $1,500. If you are paying this, your boy will be safe and soundly given to you. And if you don't pay, and if you are making any attempt of treachery, you will never see your boy again. So this was the letter material, and we finished till this. Now easiness of for the easiness of the strands, I should translate all these things in Urdu as well. And finally, we will be starting our today's last lecture of explanation. Okay, so एक लड़का था, 10 साल उसकी उम्र थी, किडनैप कर लिया गया। बिल और सैम दो लड़के थे, उन्होंने इस बच्चे को किडनैप कर लिया। किडनैप करने के बाद एक केव के अंदर ले गए, गार के अंदर ले गए, वहां बच्चे को संभाल रहे थे। मकसद क्या था? मकसद ये था कि उस बच्चे के वालिद, जो बहुत पैसे वाले हैं, मिस्टर डॉटसर, उनसे $2,000 लिए जाएं। ये मकसद था उनका, और ये $2,000 से वो क्या करेंगे? कुछ उनको प्रॉपर्टी खरीदनी थी, उसमें वो $2,000 काम आने थे। अच्छा, बहरहाल उन्होंने जो है वो बग्गी करवाई, वो गए वहाँ पर डॉर्सेट के घर की तरफ, और वहाँ से बच्चे को जो है ना वो कहा चॉकलेट लेनी है, आ जाओ बेटा, ऐसे ऐसे करके उसको बहरहाल बहला फुसला के जिस तरह से भी जो है ना उसको बग्गी में बिठाया और लेकर आ गए। अच्छा, उसके बाद जो है वो ये बच्चा जो है वो गार के अंदर आया। गार के अंदर आने के बाद जो है उसने अपने दोनों को परेशान करना शुरू कर दिया। कह रहे सोने का टाइम था, लेकिन 3 घंटों तक जो है वो बिल्कुल भी नहीं सोया, परेशान हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि अब जो है ना बच्चे ने पहली हरकत क्या की, छुरी ली और बिल के ऊपर चढ़ गया, मैं तुम्हें मार डालूंगा। दूसरी हरकत ये की कि आपस में लड़ रहे थे, आपस में लड़ रहे थे तो पत्थर उठा लिया बच्चे ने, और उस कह रहे मैं आपका सर फोड़ दूंगा। बहरहाल जो सैम था उसने हालात को जो है वो थोड़ा बेहतर किया दोनों के दरमियान में, और बच्चे से कहा कि देखो, मैं तुम्हें घर पे भेज दूंगा। अब अच्छा, बच्चा ऐसा था कि जिसको घर नहीं जाना था। बच्चा कहता था कि मैं घर के अंदर नहीं जाना चाह रहा, मुझे तो बाहर घूमना है, और मुझे तो यहाँ पर अच्छा लग रहा है। तो यहाँ बच्चे को अच्छा लग रहा था। सैम ने कहा अगर तुम इस तरह की हरकतें करोगे तो मैं तुम्हें घर पे भेज दूंगा। अब सैम की इस बात की वजह से वो बच्चा थोड़ा सुकून में आया। दोनों ने हैंडशेक किया, बिल ने और बच्चे ने, और उसके बाद जो है ना बिल ने और सैम ने ये डिसाइड किया कि भाई हम जो है वो क्या करेंगे, हम जो है इसके वालिद को अब खत लिखेंगे। खत में लिखा कि भाई तुम्हारा बेटा हमारे पास है, पैसे दो, बच्चा ले जाओ। सही सही, पैसे नहीं दोगे, मसले ही पैदा करोगे, तो तुम्हारा बच्चा तुम दोबारा नहीं देख पाओगे। सो यहाँ तक हमने पढ़ा था। ओके, अब अब क्या हुआ कि सैम ने कहा था कि मैं जो है ना पॉपुलर केव, जगह का नाम है, वहाँ यहाँ से 3 माइल दूर जो ये जगह है वहाँ जाता हूँ, और वहाँ देखता हूँ कि सूरत हाल क्या है। तो बहरहाल अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आई वॉक टू पॉपुलर कोव एंड सेट अराउंड द पोस्ट ऑफिस स्टोर chatting to customers. One guy says that he hears summits. He hears. Yes, Alex.
तो ओके ओके, देयर वाज इंटरनेट प्रॉब्लम। सालिक बेटा, इंटरनेट का जब इशू होता है तो थोड़ा बहुत इशू आता है, आप एडजस्ट करें। अब आपके पास आवाज़ नहीं आ रही होगी, डिस्कनेक्ट हुआ था इंटरनेट। ओके, सो गोइंग फॉरवर्ड, कह रहे हैं कि मैं जो वो सैम कह रहा है, आई वॉक टू पॉपुलर Poplar Cove and sat around the post office store chatting to customers. One guy says that he hears Summit is all upset on account of Elder Dorset's boy having been lost or stolen. That was all I wanted to know. I posted my letter surreptitiously and came away. मैं पॉपुलर कोव की तरफ गया, उस इलाके की तरफ गया, वहां थोड़ी देर बैठा पोस्ट ऑफिस के पास, लोगों से बातें की। वहां मैंने देखा कि एक बंदा ये बात कर रहा था कि समिट के अंदर जो है ना वो हर तरफ अपसेटनेस, यानी लोग अफसुर्दा हैं वहाँ के। और अफसुर्दा होने की या परेशान होने की वजह ये है कि एल्डर डॉर्सेट का बेटा, वही 10 साल का बेटा जिसको इन्होंने किडनैप किया है, तो एल्डर डॉर्सेट का बेटा जो है या तो गुम गया है या उसको किसी ने चुरा लिया है। तो इस वजह से सब वहाँ पर अपसेट है। बहरहाल ये कह रहा है, सैम कह रहा है कि मुझे तो सिर्फ यही जानना था कि वहाँ के हालात क्या है, तो मैंने उसको जाना और अपना लेटर जो है वो जल्दी से जो है वो पोस्ट किया और वापस आ गया। When I got back to the cave, Bill and the boy were not to be found, so I waited. अब वहां पर मैं गया और जाने के बाद क्या हुआ कि केव के अंदर पहुंचा तो ना वो बच्चा वहां पर मुझे नजर आ रहा था, ना बिल वहां पर नजर आ रहा था। बहरहाल मैंने कहा कि चलो यहाँ कहीं गए हुए होंगे। मैंने वेट किया। Half an hour later, Bill appeared out of the bushes. Behind him was the kid, stepping softly like a scout, with a broad grin on his face. Bill stopped, took off his hat, wiped his face with red handkerchief. The kid stopped about 8 feet behind him. Sam, says Bill, I'm sorry, but the boy's gone. I have sent him home. I have been subjugated to such awful torture. I reached my limits. What is the trouble? Bill said. Bill, I asked. आप यहाँ पर कह रहे हैं, यस बेटा, ओवर। Omar, you have raised your hand. Want to say something? सर इसके क्वेश्चन आंसर आपसे करवाए। बेटा अभी तो चल रहा है ना, एक्सप्लेनेशन चल रही है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स या वर्ड मीनिंग्स या कुछ और एक्सरसाइजेज होंगी। अभी तो क्वेश्चन आंसर्स चल रहे हैं। ओके, जब क्वेश्चन आंसर्स हो जाएंगे तो उसके बाद फिर दूसरी चीजें होगी। आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, सालिक व्हाट इज मीन बाय सब्जुगेटेड? सब्जुगेटेड का मतलब ये होता है कि किसी चीज की तरफ जो है ना फैसला साजी कर लेना, मतलब किसी चीज को फतह कर लेना। ठीक है, सो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जब वापस आया, वापस आने के बाद देखा बिल भी नहीं है, बच्चा भी नहीं है, तो मैं थोड़ा सा वेट किया मैंने उसका। तकरीबन आधे घंटे के बाद जो है बिल अपीयर हुआ झाड़ियों में से। उसके पीछे जो है बच्चा था, बिल्कुल छू आराम आराम से, बिल्कुल पता ना चले उस तरह से जो है वो पीछे पीछे आ रहा था। बिल स्टॉप हुआ, उसने अपने हेड को निकाला, अपने मुंह को साफ किया, फेस को साफ किया,
लाल कलर की हैंडकरचीफ के साथ यानी रुमाल के साथ। उसके बाद जो है वो बच्चा खामोशी से जो है ना बिल के पीछे तकरीबन 8 फीट के फासले पे खड़ा हो गया। सैम, बिल ने कहा, मैं आपसे सॉरी करता हूँ। बच्चा तो चला गया, लेकिन मतलब मैं आपसे सॉरी करता हूँ क्योंकि बच्चा तो चला गया, मैंने उसे घर भेज दिया। अच्छा, उसने मुझे जो है ना परेशान कर दिया था। सब्जुगेटेड का जो वर्ड है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को फतह कर लेना। ओके, किसी चीज़ के ऊपर काबू पा लेना। यहाँ पर सब्जुगेटेड का मतलब ये है कि उसने जो है ना मुझ पे बहुत ज़्यादा ओफुल टॉर्चर्स करके मुझे जो है ना अपनी हद से जो है ना ज़्यादा, मतलब अब मैं अपनी हद लिमिट्स को क्रॉस कर चुका था। मतलब मैं कुछ फैसला करने वाला था, यहाँ तक पहुंचा दिया कि मैं मेरे अंदर सब्र की पैमाइश, जो सब्र का वो पैमाना था ना, वो ख़त्म हो गया, लबरेज हो गया। ठीक है, जितना मैं सब्र कर सकता था, इस बच्चे ने मुझे उससे ज़्यादा परेशान किया। आई रीच्ड माई लिमिट्स, मैं जो है ना बस क्रॉस करने वाला था। अच्छा, व्हाट इज़ द ट्रबल बिल, आई आस्क्ड। मैंने कहा, मसला क्या है दिल, मसला क्या हुआ था या मसला क्या है? ओके, आई वॉज रोड लाइक अ हॉर्स, सेज बिल। बच्चे ने जो है ना मुझे घोड़ा बनाया है, घोड़ा बनाया, और घोड़ा बना के मुझ पे बैठा, और बैठने के बाद जो है ना वो मुझ पे घुड़सवारी कर रहा था। देन आई वॉज गिवन ओट्स, जो घोड़ों को ओट्स खिलाई जाती है, वो जो है ना मुझे खिलाई गई, मतलब मुझे दी गई। सैंड इज नॉट एडिबल, आई टेल यू सैम, अ ह्यूमन कैन ओनली स्टैंड सो मच। कह रहे हैं कि भाई मिट्टी जो है ना वो खाने वाली चीज़ नहीं है। मैंने तुम्हें कहा था सैम कि एक इंसान जो है ना वो बहुत देर तक खड़ा हो सकता है। इट टेक्स हिम डाउन द माउंट, आई टेक हिम डाउन द माउंटेन, आई टेक्स यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। आई टेक हिम डाउन द माउंटेन, मैं उसे जो है माउंटेन के नीचे ले गया। ऑन द वे ही किक्स एंड बाइट्स, रास्ते में उसने मुझे बहुत परेशान किया, मुझे किकें मारी, मतलब लातें मारी, मुझे काटा दांतों से। बट इज गॉन, गॉन होम। लेकिन भाई अब वो गया, चला गया भाई, घर पे चला गया। आई शोड हिम द वे, मैंने उसे रास्ता बता दिया था। मैं परेशान था, मैंने उसको घर पे भेज दिया। आई एम सॉरी वी लॉस्ट द रैंसम, मैं बहुत तुमसे जो है ना माजरत करता हूँ क्योंकि अब हमें वो पैसे नहीं मिलेंगे। बट इट वॉज आइदर दैट और मी टू द मैड हाउस। लेकिन यहाँ इस जगह पर जहाँ अभी हम मौजूद है केव में, इतनी गड़बड़ हो गई थी कि मैं रह सकता था भाई, या तो वो बच्चा रह सकता था भाई, सीधी सी बात है। उसने इस घर को पागल खाना बनाया हुआ था। या तो मैं रहता इस घर में, या वो रहता। बिल सेज आई, बच्चे से मैंने कहा, ओ बिल से मैंने कहा, हैव अ लुक बिहाइंड यू, पीछे देखो, पीछे तो देखो। बिल टर्न्स एंड सीज, बिल जो है वो पीछे मुड़ता है और देखता है। सीज द बॉय and loses his complexion and sits down। फिर अपनी जो है ना वो जो हिम्मत होती है ना उसको हारता है, नीचे बैठ जाता है। For an hour I was afraid for his mind, and then I reminded him that we would get the ransom and be off with it by midnight if old Dorset paid up. So Will braced himself। अच्छा, वो जो है ना वापस हिम्मत हारा बिल, कि यार मैंने इतनी मुश्किलों से इस बच्चे को घर पे भेजा था, लेकिन ये तो बच्चा घर पे गया ही नहीं। तकरीबन 1 घंटे तक जो है ना वो खौफ की आलम में, क्योंकि बच्चे ने उसको बहुत परेशान किया था, खौफ के आलम में वहां पर बैठा हुआ, और मुझे नहीं पता उसके दिमाग में क्या चल रहा है। बहरहाल मैंने किसी तरह से उसको जो है ना ये रिमाइंड करवाया कि हम तो भाई ये पैसे लेंगे, $1500, और यहाँ से बी ऑफ का मतलब होता है दफा हो जाएंगे, मतलब भाग जाएंगे। और कब भागेंगे? रात को, यानी आधी रात को जो है ना हम यहाँ से निकल जाएंगे। अगर डॉटसेट ने हमें पैसे दे दिए, हम जो है यहाँ से फौरन से निकल जाएंगे, भले आधी रात हो।
तो बिल जो है ना उसने अपने आप को ब्रेस्ड किया, अपने आप को जो है ना थोड़ा तसल्ली दी कि ठीक है ठीक है ठीक है, दिस वॉज माई स्कीम फॉर कलेक्टिंग द रैंसम विदाउट बीइंग कॉट। मेरा जो है वो क्या कहते हैं आइडिया था, ये जो मेरी स्कीम थी, ये जो मेरा प्लान था, वो ये था कि पैसे लो और भाग जाओ, पकड़ में नहीं आओगे। द ट्री अंडर विच द आंसर एंड द लेटर the money was to be left was in a wide open area. If any police came, I would see. Wait, beta. Uh, I would see them a mile off. At 8:30, I was well hidden in the tree waiting. कहने के मेरे जो पैसे जमा करने वाला आइडिया था वो ऐसा आइडिया था कि पैसे लो और बगैर हाथ में आए जो है ना भाग जाओ। जिस दरख्त के नीचे आंसर लाना था या वहाँ पैसे बाद में रखने थे, वो एक ऐसी जगह थी कि जो बहुत बड़ा एरिया था, ओपन एरिया था। अगर कोई पुलिस वाला भी या कोई भी पुलिस की टीम वहाँ पर आती तो हमें बहुत दूर से जो है ना उसके बारे में पता चल जाता। तो बहरहाल मैं जो है वो 8:30 बजे अपने आप को बेहतरीन तरीके से दरख्त के अंदर छुपा लिया और मैं वेट कर रहा था। किस चीज़ का वेट कर रहा था? वेट कर रहा था कि कोई आए और मेरे जो लेटर है उसका आंसर दे, या फिर उसके बाद जो है मैं आगे की कहानी करूँ। सो यहाँ तक रखते हैं बेटा। देखिए, पॉपुलर केव के गए, वहाँ गए, वहाँ देखा पोस्ट ऑफिस के अंदर लोग बातें कर रहे थे आपस में। एक बंदा आया, उसने कहा समिट के अंदर अपसेटनेस है, डॉट सेट का बेटा गुम गया है। और ये सुन के मैं वापस आ गया। जब वापस आया, बिल और बच्चा दोनों नहीं थे वहाँ पर। आधा घंटा वेट किया। बिल जो है झाड़ियों के पीछे से आया, कहने लगा मैंने बच्चे को उसके घर पे भेज दिया, बहुत परेशान कर दिया, मुझे घोड़ा बना के मुझ पे बैठ रहा था। मुझे जो उसने ओट्स खिलाई, जो क्या कहते हैं घोड़े वगैरह को। यस बेटा। उमर नौमानी पहले आप, फिर उसके बाद अदियान। Please, you have raised your hands. What do you want to ask Umar Noman and Muhammad Adiyan? Unmute your mics. Okay. I'm waiting for your question. If you want to type, type it. If you want to write, or if you want to talk to me, please speak that. Okay. So बेटा, आप अगर पूछना चाह रहे हैं तो जवाब दीजिए, अगर नहीं पूछना चाह रहे हैं तो प्लीज लोअर योर हैंड्स। थैंक यू। ओके। तो यहाँ पर ये हुआ कि वहाँ उसको पता चला, पता चलने के बाद जो है वो बच्चे को देखा घोड़ा बना रहा है, ओट खिला रहा है, टॉर्चर कर रहा है। बहरहाल मैंने उसको पहाड़ी से नीचे उतार दिया, वो अपने घर पे जा रहा होगा, मुझे नहीं पता। सैम ने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, बिल देखो पीछे कौन है। जैसे पीछे बिल ने देखा तो वहां पर वही वाला बच्चा था जिसने उसके नाक में दम किया हुआ था। सो बिल जो है वापस जो है ना हिम्मत हार के खौफ ज़दा होके वहां पर बैठ गया। तकरीबन 1 घंटे तक जो है ना मैं इसके पढ़ ही नहीं पा रहा था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। बहरहाल मैंने इसको रिमाइंड करवाया कि देखो भाई, हम पैसे पकड़ेंगे, पैसे लेंगे, पैसे लेके आधी रात को भाग जाएंगे। हमें जो है ना वो पुलिस वुलिस से कोई मसला नहीं है, बस हम पैसे लेंगे और भाग जाएंगे। तो उसे हिम्मत आई, बिल को हिम्मत आई, हाँ भाई पैसे मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, पैसे पकड़ के चले जाएंगे। अच्छा खैर,
आगे क्या कहानी हुई कि अब जो है वो स्कीम उनकी यही थी कि भाई पैसे लेने चला जाना है। स्कीम के मुताबिक उन्होंने जो है वो रात को 8 बजे, 8 साढ़े 8 बजे जो है वेट किया दरख्त के नीचे, जो है जहाँ पर दरख्त के नीचे जहाँ पर उनको आंसर लेना था उसके आसपास जो वो छुप गया। और उसने देखा कि दरख्त के आसपास जो है ना बहुत बड़ा एरिया है, अगर कोई आएगा भी ना, पुलिस वगैरह या कोई और किस्म के लोग के जो उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे, तो उसे पता चल जाएगा और उसके पास इतना टाइम होगा कि वहां से वो स्केप हो जाए। तो ये है कहानी पेज नंबर 18 तक। ओके, दिस इज द स्टोरी टिल पेज नंबर 18। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस प्लीज रेज योर हैंड्स। अच्छा, रेस भी कर सकते हैं अपने हाथ को, साथ साथ आप चैट बॉक्स में लिख के भी बता सकते हैं कि जी सर समझ में आ गया। दिस इज योर रिस्पॉन्स टाइम। यस बेटा। सालिक को समझ में आ गया, वेरी गुड बेटा सालिक। दूसरे नंबर पे और कौन है, किस किस को समझ में आया? एहसन जावेदी says that he has understood this, very good beta एहसन। उजैर एंड इब्राहिम, वेरी गुड, नाइस नाइस नाइस। यस बेटा। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया वो मुझे लिख कर बता सकता है। इन द मीन टाइम, समझ में आ गया अपना हाथ बुलंद कीजिए या चैट बॉक्स में लिख दीजिए। अदियान सेज दैट अस्सलाम वालेकुम सर, प्लीज़ मुझे तमाम चैप्टर जो आपने अभी तक पढ़ा दिए हैं प्लीज़ पोर्टल में भेज दें। बेटा पोर्टल में भेजे हुए हैं, पोर्टल में मौजूद हैं। पहले दिन से, आज से 6 महीने पहले जो पहला लेक्चर रिकॉर्ड किया था और अभी तक जितनी रिकॉर्डिंग्स हैं वो सारी वहाँ पर मौजूद है। आप जाएं अपने होमवर्क में इंग्लिश को देखें, आपको आराम से सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ओके, अली मोहम्मद अली कह रहे हैं कि सर समझ में आ गया। ठीक है बेटा, सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। जज़ाकमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।